career as a small website developer, designer in one of the prestigious IIT, and I was working in one of these projects there, and just after that I started this company Shri Technocrat. थोड़ा सा brief about do I need a website or app for businesses? So to start with, take a glance in your around, not the time that you were born, but आजकल के ज़माने में without technology nothing is possible, as they say. Hello, yeah. Okay, so over past few years, technology have been into our life to all the extent, and आजकल around 8 hours we are engaging ourselves into mobile apps, getting information online digitally. So आज का टॉपिक उसी के ऊपर लेकर है, do I need a website for my business? Do I need a app for my business? So start with, I would like to know, do you, so what is the percentage of small businesses still doesn't have a website? कोई आइडिया बताना चाहेगा? I guess 70%. So you are, so it is 46%, but yes, लखनऊ में approximately 70%. थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता है क्या? It's too loud. अच्छा तब ठीक है, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है. So approximately 46% of small businesses doesn't have any website till now, and approximately 12% of people doesn't see in future also, and approximately 10% is not sure if they want a website or apps. This is the rough estimation, but taking into the consideration about the 46% of businesses are still not in their digital medium, and they are losing a lot of chunk in the terms of market they are capturing. So talking about website, you can consider website as an anchor to your marketing. So marketing part, Rishi will be telling you further, but I'll just take a small example that your end-to-end marketing starts from a website and ends to a website. Why? Because every marketing, or you can say every profile, social websites need your website URL or your domain URL for an identification of your presence, the online presence. Also, a website is considered, or you can say a website can be treated as the information that is centralized information, where all your information, all the details can be in one place. And you can also give your marketing messages to your consumer, to your visitor. Apart from that, you can take control of your digital brand. So for example, you are getting many reviews in many profiles, you are getting many recommendation, testimonial in many websites in different platforms, but a website you can make it a single platform, a centralized platform to send all your marketing messages and controlling your digital brand. Second, the important aspect of your website is expanding your customer base. So the digital medium, through the digital medium, you can reach your customers at a faster pace than any offline marketing that is happening. And you can keep your existing customers, you can keep your existing consumer informed, and you can also float your marketing messages as you want in your website. It also strengthens your online presence. A website can improve your brand awareness and recognition. I would like to emphasize one of the most important part. So today, the websites and the apps have become a top priority for any marketing campaigns that we will be running, because you can make your consumer aware about your product, about your services, but they will be coming back to your website to see about your organization. They will be getting influenced by your messages that you will be posting in your website. So website is a place where you will be having your own shop, you will be having own businesses that you will be mentioning, that what exactly your consumer should understand, read about you, get information about you, and so on. आगे बढ़ते हैं.
establishing credibility about your business. Yeah, establishing credibility about your business. So even though you have a business, physical shop, office in your location, but many consumers do research before buying any product. So I'll just give you an example. When you decide to buy a new car, आपने कार खरीदी, you have कंडीशन की आपको पता है आपको टाटा की कार खरीदनी है या आपको पता है कि आपको रेनॉल्ट की कार खरीदनी है, आपको ये भी पता है कि आपको ये टाटा की कार कौन सी पसंद है, बट फॉर द कंपैरिजन पर्पस, फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द आफ्टर सेल सर्विस, व्हाट यू डू, हम लोग सब जाते हैं वेबसाइट में, गूगल सर्च में टाइप करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। आप अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं कि डू यू रियली वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर टाटा कार, कि टाटा की पंच कार एक नई लॉन्च हुई है, डू यू रियली वांट टू बाय। इन सब का डिसीजन लेने के लिए हम लोग ऑनलाइन जाते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% इंडिविजुअल रीड अबाउट द प्रोडक्ट एंड इवेल्युएट दैट बिफोर मेकिंग एनी परचेजेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है एंड यू आर ओनली हैविंग सोशल प्रोफाइल्स लाइक फेसबुक में है, लिंक्डइन में है, इंस्टाग्राम में है, एंड यू डू नॉट हैव एनी वेबसाइट। तो जनरली क्या होगा, फॉर योर प्रोडक्ट पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर सोशल प्रोफाइल, बट कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पे आप अपनी मैसेजिंग, या फिर आप कहना चाहिए यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी थर्ड पार्टीज और थर्ड प्लेटफॉर्म्स। सो दैट इज ओनली योर वेबसाइट, जहां पर आप सारे प्रोफाइल्स या सारी इंफॉर्मेशन या सारा टेस्टिमोनियल रिकमेंडेशन वो एक प्लेटफॉर्म पे ला के आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सो वेबसाइट इज ओनली द डिजिटल एसेट which you can control at your own will, and आप बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन you are dependent upon some other algorithms. Somebody else is managing your profile because it is based on algorithms. कब आपको टॉप में दिखेगा, कब आपके वायरल हो जाएंगे पोस्ट, कब नहीं होंगे, अगेन ऑल दिस इज डिपेंडेंट अपॉन वन ऑफ द एल्गोरिथम्स बाय थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। बट हाँ, इसके पीछे भी बहुत साइंस है, मेरे ख्याल से आगे ऋषि जी और बाकी जो मार्केटिंग वाले हैं वो बताएंगे। बट वेबसाइट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कम एंड मेक डिसीजंस अबाउट योर प्रोडक्ट, एंड इन दैट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ यूजर्स डू गूगल सर्च एंड अदर सर्च इंजन टू कंडक्ट योर इंटरनेट रिसर्चेस। सो क्या है, हम सिर्फ कार खरीदने नहीं जाते हैं, हम जब भी जाते हैं हम कंपेयर करते हैं, एंड उससे भी ज़्यादा हम अपने आप को मनाते हैं कि डू वी रियली नीड दिस प्रोडक्ट, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। बहुत बार हम डिसीजन लेते हैं या तो इन्फ्लुएंस होके, जैसे फैमिली मेम्बर ने बताया कि यू गो एंड बाय दिस पर्टिकुलर कार, रेनॉल्ट की कार, बट हम लोग कभी उस पर डिसीजन नहीं लेते, हम लोग अगेन अपना रिसर्च करते हैं, एंड वो रिसर्च लीड करता है एट द एंड आपके खुद के वेबसाइट पे। और अगर आपका खुद का वेबसाइट का प्रेजेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करूँ श्री टेक्नोक्रेट फॉर एग्जाम्पल, और मुझे सिर्फ अपने सोशल प्रोफाइल्स मिलते हैं, वेबसाइट नहीं मिलती, तो एक मन में सवाल आता है कि क्या क्रेडिबल है ये, क्योंकि इनकी सारी जगह प्रेजेंस है, वेबसाइट का नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि नहीं, ऑफिस जाके देखेंगे इनका कि एक्चुअल में ऑफिस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। होता है ना कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे वन ऑफ द बिजनेस मेरे फैमिली में होता है 2 बेबी टॉयज़ का, तो बहुत बार सवाल आता है कि आपका ऑफिस कहाँ है, तो जनरल हमारा स्टेटमेंट होता है you go and check our website, it have all the details regarding product, services, event that we do, the things we are supporting, हमारे क्या पैकेजेस हैं, हम सारे इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट में मिलेगी। बट इफ यू वुड लाइक टू कम टू अवर ऑफिस, दैट इज योर सेकेंड चॉइस। लेकिन आजकल कोई आना नहीं चाहता। फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ आई कैन शो ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू पास इट ऑन। नाउ व्हाट्सएप भी एक बहुत जगह हो गया कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाते हैं, बट अगेन दैट इज नॉट सर्चेबल। फिर सोशल मीडिया में आप एक लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन कोई अपने आप आके कोई मैसेजिंग आपको एक जगह पढ़ना चाहे तो वेबसाइट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। देन व्हेन यू बिल्ड योर ओन वेबसाइट, यू कंट्रोल योर ऑडियंस, मैंने ये बताया। सो बिजनेसेस हु रेगुलरली ब्लॉग गेट 60% मोर लीड्स ईच मंथ। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक मार्केटिंग का पॉइंट है, बट अगेन इट इज रिलेटेड टू वेबसाइट। सो वंस यू हैव क्रिएटेड योर वेबसाइट, आपने वेबसाइट बना ली, यू हैव गिवन योर मैसेजिंग कि आप अपने कंज्यूमर को या अपने क्लाइंट्स को क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, देना चाहते हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफ़ योर वेबसाइट डजेंट हैव अ रेगुलर ब्लॉग इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग योर कस्टमर्स। क्या है कि मैं इस बिजनेस में हूँ पिछले 10 साल से। फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स
जो ERP सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल माय कंपनी इज गिविंग ERP सॉल्यूशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज, बट हमने भी अपनी टेक्नोलॉजी, हमारी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है फ्रॉम लास्ट 10 to 12 ईयर्स. सो एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट बना लें एंड दैट इज इट, कि आपने वेबसाइट बना ली एंड आपका सारा काम खत्म हो गया है. दैट इज नॉट द केस. यू हैव टू कीप योर वेबसाइट कंटेंट अपडेटेड रेगुलरली, बिकॉज अगर आपने वेबसाइट बना के डाल दी है, इट इज हैविंग अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, दैट इज ओके फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक रेगुलर अपडेट्स थ्रू दी ब्लॉग्स होना चाहिए, सो दैट यू कैन मेक योर ऑडियंस upgraded every time the new technology is coming or new something is coming. So you have to make your audience upgraded every time. उससे एक डबल बेनिफिट होता है दैट सर्च इंजन में आपका अच्छा रैंकिंग आ जाती है, नंबर वन. योर ऑडियंस गेट टू नो दैट यू आर इन दी मार्केट एंड यू आर गिविंग अस दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड सो ऑन. सो उसके लिए ब्लॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. एक छोटा सा वीडियो आप लोग को दिखाना चाहूँगा. आई जस्ट टेक कपल ऑफ सेकेंड्स फॉर दैट. एक ये बहुत फेमस, आपने नाम पता नहीं, जो डिजिटल एजेंसीज है उन्होंने तो सुना ही होगा, HubSpot नाम की एक एजेंसी है. उनके एक वन ऑफ द स्पीकर ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, तो आई जस्ट वांट टू शो यू दिस. When you think about your website, whether you have one yet or not, the first question to ask is, what is the job of your website? You can use the jobs to be done framework, otherwise known as the job. You figure this out. The jobs theory was developed by Clay Christensen at Harvard Business School, and it's a helpful way to look at customer needs by focusing on their motivations. The jobs theory is the idea that people have jobs in their life. So इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया, जॉब्स थ्योरी. मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, उसको आप थोड़ा समझिए कि ये क्या बताना चाह रहे हैं. एक जॉब थ्योरी नाम का एक यूनिवर्सिटी वहाँ की उन्होंने निकाला था, तो इसके बारे में आप थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. Christensen at Harvard Business School, and it's a helpful way to look at customer needs by focusing on their motivations. The jobs theory is the idea that people have jobs in their life that need to be done, and they hire the best product or service to do it. So basically, मैं बीच बीच में ब्रेक करके इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इनपुट्स. सो वी आर योर application, your websites are giving some information, motivation for your consumer to consume some information. So that information can be a service, that can be a product, it can be some input or output from your agencies, so they get motivated to make that particular purchase or service done. Like वो एक वहाँ पे उनका पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. Think about the saying, people don't buy a quarter-inch drill, they buy a quarter-inch hole. This is a perfect example of the jobs theory in action. When someone purchases a drill, they're hiring that drill to do the job of creating a hole in their wall. Christensen's theory was written with products and services in mind, but it can be applied to websites. Ask yourself, what is the job people are hiring your website to do? Your site will have several different jobs. Some people may be coming there to find out about your pricing, while others might want to speak with your sales team. Regardless of why people are coming to your site, it needs to help them accomplish their goals easily and efficiently. So वेबसाइट में आने का जो गोल है, पर्पस है आपकी कंज्यूमर को, वो भी एक फुलफिल होना चाहिए. इट शुड एक पूरी मार्केटिंग सर्किल जो कंप्लीट होती है वो आपके एंड होती है परचेज में. एक वन ऑफ द टूल्स दैट वी यूज इन गूगल के लिए वो है कन्वर्जन. हम लोग कन्वर्जन चाहते हैं सभी लोग कि इफ समबडी इज कमिंग टू आवर वेबसाइट, तो सबसे पहला होता है एंगेज करेंगे, अवेयर होंगे, देन दे विल मेक अ डिसीजन एंड जो परचेज है दैट इज द लास्ट स्टेप इन द कंप्लीट प्रोसीजर. नाउ अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, पर्पसेस हैं. जैसे एक पर्पस है कि आई वांट टू सेल समथिंग, दूसरा पर्पस है आई वांट टू मेक दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज कमिंग टू अवर वेबसाइट अवेयर अबाउट द सर्विसेज दैट आई एम प्रोवाइडिंग. एंड वैसे ही बहुत सारे सबके अपने अपने पर्पसेस होते हैं. सो इफ योर वेबसाइट इज कन्वेइंग अ मैसेज, और अगर वो कन्वर्ट होते हैं, दैट इज द प्लेस, दैट इज द टाइम जो आप कंसिडर कर सकते हैं इट इज फुलफिलिंग योर पर्पस ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट. If not, you risk losing them for good. 88% of online consumers are less likely to return to a website after a bad experience. So it's important to determine the job your website is being hired to do and to execute on that job.
Remember that the job to be done of your website is the one that your audience determines, not you. Focusing on your visitors' experience and seeing your site through their eyes will ensure that your website accomplishes the job it's been tasked to do. ओके ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है HubSpot. जितने भी मार्केटिंग या एजेंसी से होंगे वो जानते होंगे इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को. ओके जस्ट अ सेकेंड. या सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि इट शुड सेटिस्फाई द अल्टीमेट पर्पस ऑफ योर मेकिंग योर वेबसाइट. एंड जो फुल साइकिल कंप्लीट होती है फॉर फ्रॉम द अवेयरनेस टू एंगेजमेंट टू कन्वर्जन ऑफ द सेल्स और सर्विस या फिर सेंडिंग एनी मैसेजेस टू योर कंज्यूमर. बट हाउ टू अचीव ऑल दीज थिंग्स. बहुत ईजी 5 स्टेप्स हैं. सो बहुत सारे वेबसाइट, जैसे मैं भी एक वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी आप कह सकते हैं, ऑल्दो वेबसाइट इज़ ओनली 10-20% ऑफ माई कंप्लीट बिजनेस. बट बहुत लोग वेबसाइट के एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानते हैं दैट यू हैव टू गो टू वन ऑफ द एजेंसीज टू मेक अ वेबसाइट. आप वो एजेंसी जाएंगे, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, उसके बाद एक आपको कोटेशन आएगा. बट द वेबसाइट डेवलपमेंट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. बस 5 बेसिक स्टेप चाहिए. चूज अ डोमेन नेम according to the domain name should be according to your business. Number 2, select any hosting plan. बहुत सारे सर्वर और होस्टिंग प्रोवाइडर हैं ऑनलाइन, GoDaddy, BigRock, हज़ारों हैं. So you can just select one of the name, select one of the hosting plan. Then the important part comes कि एक सिंपल सा आप कोई भी CMS यूज़ कर सकते हैं. For example, you can use WordPress, Joomla. For e-commerce you can use any Shopify. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं CMS के जो कि आप यूज़ करके अपने प्लेटफॉर्म को लाइव कर सकते हैं. एंड देन कस्टमाइजिंग योर वेबसाइट, योर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द ऑडियंस, द टारगेट ऑडियंस जो भी आपका है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन बनाइए. एंड एट द एंड फॉर ऑल द एनालिटिक्स एंड कन्वर्जन्स यू कैन इंस्टॉल एनी वेब मास्टर. ये टूल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, उस तरह के जो कंसोल्स आते हैं आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेबसाइट इज़ वेरी सिंपल बट द इम्पैक्ट इज वे मोर. मतलब आपका जो कस्टमर है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा आपका. एंड व्हेन यू आर डेवलपिंग योर वेबसाइट योर ओन, जब आप खुद करते हैं, ऑल्दो एक एजेंसीज, हम लोग जैसे एजेंसीज हैं उसको प्रोफेशनली मार्केट करने के लिए, बट एक वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हैं. जब आप खुद बनाते हैं तो जब मेन बेनिफिट इज दैट यू कैन कीप ऑन अपडेटिंग योर वेबसाइट बेस्ड ऑन द इनपुट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर कस्टमर्स. क्या होता है कि हमने वेबसाइट तो बना दी है बट मेनी टाइम्स योर कस्टमर कॉल्स एंड आस्क यू पर्टिकुलर क्वेश्चन विच दैट मैसेजिंग इज नॉट इन योर वेबसाइट. सो आप अपने भी वेबसाइट्स को एनहांस करते रहते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर्स फीडबैक, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर प्रॉस्पेक्ट, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, और उस हिसाब से आप अपने वेबसाइट को भी एनहांस और अपग्रेड करते हो. लास्ट, whenever you're going to an agency or you are developing any website your own, there are few components that is needed. बहुत ज़रूरी हैं. भले ही आप एक छोटा सा 5 pages वेबसाइट बनाइए या फिर एक बड़ी सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन बनाइए. Number 1 is the design should be a business appropriate design. Number 2, your contact details should be accessible across all the websites. सारे pages में header, footer, contact page. एक ब्लॉगिंग का भी ऑप्शन रखिए सो दैट इट इज़ गुड फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर कंज्यूमर, सो दैट दे विल बी कमिंग बैक टू योर वेबसाइट. हम लोग इन्फिनिटी कनेक्ट की एक वेबसाइट बना रहे हैं. सो आई फ्लोटेड एन आइडिया टू, मैं रिवील कर सकता हूँ. सो आई फ्लोटेड एन आइडिया व्हाई वी शुड नॉट हैव अ ब्लॉगिंग एरिया इन द इन्फिनिटी कनेक्ट वेबसाइट. अभी क्या है, इन्फिनिटी कनेक्ट की आप वेबसाइट जाइए, इट इज़ अ बेसिक वेबसाइट हैविंग what is about Infinity Connect, couple of events and so on. I suggested to put a very important part, that is a blog section. It will solve 2 purposes. पहला पर्पस, Infinity Connect के वेबसाइट में कोई क्यों आएगा, अगर आएगा भी तो वो जीवन में बस एक बार आएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए. वो आया, उसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, उसने पेमेंट किया, सुरभि जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज एन मेंबर एंड उसका काम खत्म. हमारे पास कोई एक सेकेंड या कोई हमारे पास रीजन नहीं है टू रिविजिट दैट वेबसाइट. सो आई सजेस्टेड कि पुट अ ब्लॉग सेक्शन इन द वेबसाइट. वहां पे डुअल पर्पस सॉल्व होगा. नंबर 1, यू आर अ बिजनेस पर्सन. जैसे गिरीश माथुर है, गिरीश माथुर ने एक ब्लॉग डाला अबाउट माई इंडस्ट्री, जैसे कि सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के बारे में या कोई भी इंडस्ट्री, जैसे ऋषि जी है उन्होंने कोई मार्केटिंग के बारे में एक ब्लॉग डाला. इट विल सॉल्व 2 पर्पसेस. नंबर 1, द इन्फिनिटी कनेक्ट वेबसाइट विल बिकम इंगेजिंग बिकॉज नए नए ब्लॉग्स, नए नए इंफॉर्मेशन वहाँ फ्लोट हो रहा है. सेकेंडली, आपका खुद का एक ब्रांड वैल्यू डेवलप हो रही है बिकॉज इन्फिनिटी कनेक्ट एज एन कम्युनिटी
इज रिकमेंडिंग यू एज एन पर्सन नंबर 1, और आपके बिजनेस को वो रिकमेंड कर रही है बिकॉज यू आर पोस्टिंग अ ब्लॉग इन इन्फिनिटी कनेक्ट, एंड आपकी भी एक थर्ड पार्टी साइटेशन बढ़ता है। साइटेशन क्या है? आप जितने बार जहां दिखोगे उतने बार गूगल उसको रिकॉग्नाइज करेगा। Although you are not publishing that blog in Google as Girish Mathur, but you are publishing your information as Infinity Connect. So it's a game of citation कि आपका नाम या आपका citation श्री टेक्नोक्रेट गिरीश माथुर कितने बार साइट हो रहा है इस कॉम्बिनेशन से, और उसमें आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। So एक पर्टिकुलर ब्लॉग सेक्शन डालना बहुत जरूरी है। The fourth option is social proof, that is kind of a testimonial, reviews। अच्छा, क्या होता है, बहुत लोग रिव्यूज गूगल में तो आ रहे हैं, हमारे रिव्यूज सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं, बट जो हमारा कंज्यूमर है जब आपके वेबसाइट आके विजिट करता है उसको वहाँ कितने बार रिव्यूज या आपके रिकमेंडेशन दिखते हैं? और अगर दिखते भी हैं, अगर मेरा कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल मैं कॉलेजेस के वाइस चांसलर से मिलता हूँ, रजिस्ट्रार से मिलता हूँ, एंड जनरली मैं क्या करता हूँ, उनको उनके ही कंप्यूटर में अपना वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, दिस इज द सर्विसेज और दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई एम मार्केटिंग इट टू यू। अब एक बेनिफिट मुझे ये होता है कि ओके सो उन्होंने वेबसाइट देखी है, बट उन्होंने जब वेबसाइट देख ली, एक बार उन्होंने रिकमेंडेशंस पढ़ लिए, रिव्यूज पढ़ लिए, उसके बाद क्या वो दोबारा आके सेम चीज़ पढ़ना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है वो चीज़ होनी चाहिए। तो मैं 2 काम करता हूँ अपने खुद के वेबसाइट के लिए। नंबर 1, आई कीप अपडेटिंग अबाउट माई इंडस्ट्री। मैं अपनी इंडस्ट्री के चीज़ें जो लेटेस्ट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, तो बहुत लोगों ने न्यूज़ पे सुना, हर जगह सुना, बट मैं अपने भाषा में, या कहना चाहिए मैं अपने मीडियम से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, एंड बाय दैट मीडियम आई हैव गॉट मेनी क्लाइंट्स, नॉट द कंज्यूमर, द रिटेल कंज्यूमर, बट एज एन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ मेरे वेबसाइट में उस चीज़ को सर्च करते करते आते हैं। सो एक ब्लॉग का पॉइंट होता है। नंबर 2 कि फॉर एग्जाम्पल मेरे वेबसाइट में रिव्यूज़ पड़े हैं, 2 साल पुराने रिव्यूज़ पड़े हैं, विच इज़ नॉट रेलिवेंट इन टूडेज टाइम। सो मुझे रिव्यूज़ चाहिए जो मैंने आज के काम किए। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू पोस्ट दोज रिव्यू फ्रॉम योर गूगल, फ्रॉम योर सोशल मीडिया इन योर वेबसाइट। सो एक रेलेवेंसी बनती है, क्योंकि वहाँ पे रिव्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कस्टमर हो सकते हैं कभी भी मेरा गूगल मैप ना देखें, जहाँ पे एक्चुअल में सही में रिव्यूज़ पड़े हैं, बट वो मेरे वेबसाइट ज़रूर विजिट करेंगे एज एन इन्फ्लुएंसिंग, कि हाँ इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने आया, देखा वेबसाइट की ये इनका काम कर रहा, मेरा भी काम कर सकता है कि नहीं, उसके लिए मेरा वेबसाइट विजिट किया उन्होंने। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी वो मेरा फेसबुक भी विजिट करेंगे, मेरा इंस्टाग्राम भी विजिट करेंगे, जहाँ पे मेरे रिव्यूज़ एक्चुअल में, मैं अपनी वेबसाइट में कोई रिव्यू सेक्शन नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। क्रेडिबिलिटी तो सोशल प्लेटफॉर्म से ही होता है, तो वो सारे रिव्यूज़ आपके वेबसाइट में होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई मेंशन अबाउट द सोशल प्रूफ। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट सब लोग बना लेते हैं, बहुतों के वेबसाइट बने भी हैं, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, उसके भी बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। अच्छा, क्या होता है कि हम लोग ने बहुत सारे फ्री टूल्स में जाके देख लेते हैं वो वेबसाइट ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। बहुत कम एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कि कहती है कि ठीक है हम आपको पेड टूल से आपको निकाल के देंगे, इज योर वेबसाइट इज एसईओ फ्रेंडली और नॉट। बट एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है, आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन, मैं खुद भी उस एजेंसी में आता हूँ, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेल एंड रन। आजकल को बहुत जगह होता है कि बेचो और भागो। तो वो चीज़ में, उस चीज़ में जब हम वो चीज़ करते हैं तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, और हम एक्चुअल में कोई एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट या फिर एक्टिव वेबसाइट, ये सब चीज़ें मार्केट नहीं कर पाते हैं अपने कंज्यूमर को, क्योंकि प्राइस रीज़न हो सकता है, टाइम लाइन रीज़न हो सकते हैं। बट आप जब भी वेबसाइट अपने एजेंसी से कराइए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, इज इट मतलब जो कंपोनेंट्स है वो चीज़ है कि नहीं अवेलेबल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है आपका, कि आपको अपने आप क्लाइंट्स में वो ऑडियंस मिलने लगेगा, आपको अपने आप सर्च इंजन में ऊपर आएंगे तो आपको सर्चेस बढ़ने लगेगा, साइटेशंस बढ़ने लगेगा, तो उसमें बेनिफिट करता है। एंड देन एसएसएल सर्टिफिकेट, अगेन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट धीरे धीरे आपकी सारी वेबसाइट बंद हो जाएंगी इफ यू आर नॉट हैविंग एसएसएल सर्टिफिकेट इन योर वेबसाइट। एंड लास्ट इज इंटीग्रेटिंग द एनालिसिस पार्ट एंड वेबमास्टर्स पार्ट। यही तक था मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आई वेलकम द क्वेश्चन एंड आंसर। मैं क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो किसी की भी क्वेश्चन से मैं उसको आंसर करना चाहूँगा, पूछ लीजिए। नहीं, कॉस्टिंग में आप डिस्कस कीजिए। आई जनरली गिव माई सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट,
बिकॉज फॉर मी वेबसाइट इज समथिंग एज एन आइडेंटिटी। आधार कार्ड तो फ्री में मिलता है ना, उसके थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, 50-60 रुपए कन्वीनियंस चार्जेस, बट आधार, द वेबसाइट इज द आइडेंटिटी, योर बिजनेस आइडेंटिटी। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि देखिए मेरा तो बिजनेस बस मेरे मोहल्ले तक का ही है, मेरा बिजनेस मेरे से मोहल्ले तक का ही है, बट वो कहने की बात होती है। बिजनेस इज ऑलवेज अ ग्लोबल थिंग, और वेब प्रेजेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर्स देखे हैं जो कहते हैं मैं तो योगा से वेल्डिको ग्रीन्स में ही कराऊंगा और मेरे वही कंज्यूमर है। बट हाँ, अगर आपका वही मोटिव है कि आपको बिजनेस करना ही नहीं है, एज एन पैशन करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू वांट टू कंसिडर योर पैशन एज एन बिजनेस, तो आपको एक ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, और उसका बेनिफिट आपको तब दिखता है जब आपके बाहर से कंज्यूमर्स आपके आके ऑर्डर्स देते हैं और बोलते हैं कि योगा मुझे भी सिखाइए, ऑनलाइन ही सिखा दीजिए, जब उसका बेनिफिट्स आपके कंज्यूमर्स को दिखता है। और वो दिखाने का कौन सा प्लेटफॉर्म है? अगेन दी वेबसाइट। सोशल मीडिया उसका मीडियम होता है, सोशल मीडिया में भी लोग डालते हैं, बट अगर देखना चाहे कि टॉप 10 जैसे होता है सोशल मीडिया, हमने कुछ भी किया, हमने अपलोड कर दिया, बट होता है ना टॉप 10 रिव्यूज जो आपको मिले हैं, ड्रास्टिकल चेंज इन द फिगर, ड्रास्टिकल चेंज इन योर वेट, और वो आपको एक जगह डालना है, तो वो सोशल मीडिया में स्कैन नहीं करेगा 500-600 पोस्ट। इट शुड बी योर वेबसाइट जहां पे आप सिलेक्टेड अपने क्लाइंट्स को दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी अपना जहां पर भी अपना प्रोफाइल हार्ड कॉपी में देता हूं किसी कॉलेज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी ट्रेडर को, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को, तो मैं कभी भी अपने वो 500 की लिस्ट नहीं देता हूं कि मेरे 500 लिस्ट है और 1000 लिस्ट है, इतने कंज्यूमर, इतने क्लाइंट्स हैं। मैं सिर्फ 5-6 नाम देता हूं जहां से वो रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आईआईटी मद्रास का दे दिया, आईआईटी बॉम्बे का दे दिया, तो ऐसे ही 5 कंज्यूमर्स का दूंगा। मेरे वेबसाइट में भी वही 5 मेरे कस्टमर्स हैं। मैं 1000 की लिस्ट नहीं दिखाता हूं, क्योंकि अगर वो महर्षि दयानंद विद्यालय है तो ठीक है, वो मेरा क्लाइंट है, बट मैं वो टॉप 5 अपने दिखाना चाहता हूं फ्रॉम वेयर दे कैन रिलेट कि मेरे और कौन क्लाइंट हो सकते हैं, या फिर मैं किस लेवल का काम कर सकता हूं। सेम विद दी योगा इंस्ट्रक्टर, वो सिर्फ मोहल्ले तक का नहीं है, क्योंकि उसने अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उससे वेट लॉसेस काफी लोगों को हुआ है, दे कैन प्रोजेक्ट इन देयर वेबसाइट। ठीक बोला या कुछ गलत बोला? अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? आंसर करना चाहूंगा, बट ये बहुत बेसिक सा एक टॉपिक है, सबको आता होगा, बट एज एन रिक्वेस्ट फ्रॉम इन्फिनिटी कनेक्ट मैं यहाँ हूँ उसको आंसर करने के लिए। यस अच्छा, SSL सर्टिफिकेट बेसिकली जब भी आप एक वेबसाइट परचेज करते हैं तो दैट इज लाइक एन आइडेंटिटी ऑफ योर, मतलब एक वेबसाइट एक आपकी आइडेंटिटी होती है, बट SSL सर्टिफिकेट इज अ सिक्योर सेल लेयर सर्टिफिकेट। जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं, योर वेबसाइट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिक्योर। अब बहुत लोग पूछेंगे मतलब सिक्योर का मतलब क्या? तो टेक्निकल वर्ड में इट्स अ टनल बिटवीन योर कंज्यूमर एंड द वेब सर्वर, और जब वो टनल के बीच में जब इंफॉर्मेशन पास होती है, नोबडी कैन हैक द डेटा दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सर्वर एंड द कंज्यूमर। वहां पे SSL का काम आता है। नाउ गूगल एंड मेनी सर्च इंजन्स हैव मार्क्ड SSL एज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन योर वेबसाइट, कि अगर SSL नहीं है तब हम आपकी वेबसाइट में जानबूझ के दिखा देंगे दिस इज एन अनसिक्योर्ड वेबसाइट, सो प्लीज इंस्टॉल दिस SSL टू बाईपास दिस पर्टिकुलर। तो वो एक एरर मैसेज दिखाने लगता है और वो डेंजरस मार्क करने लगेगा धीरे धीरे, एंड बिना SSL के चांसेस हैं कि आपका सर्वर या आपकी वेबसाइट मालवेयर से कुछ इंस्टॉल होके वो एरर मैसेज गड़बड़ और हैकिंग का एक लेवल का इंफॉर्मेशन वेबसाइट में आ जाता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू इंस्टॉल एन SSL। पहले वो 5-6 हज़ार का आता था, अब वो 1-1 हज़ार में भी, या भी बहुत प्रोवाइडर्स फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं फॉर 90 डेज, वो भी एक चीज़ होती है। सो SSL इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इफ यू वांट टू गेट अ बेटर सर्च इंजन रैंकिंग फॉर योर वेबसाइट इन गूगल और एनी अदर सर्च इंजन। So this is Rishi Singh, and I am one of the co-founders of Awesome Sauce Creative. It is an integrated marketing. Yes. So Awesome Sauce Creative is an integrated marketing and design communications company. We started this in 2017. Since then we have been running it in Delhi. Then in 19 we shifted to Lucknow, and this is our third and final office after getting funded. So yes, Awesome Sauce Creative is a funded company. एंड अब नाम पे आ जाते हैं। सो 2017 में हम लोगों ने रैंडमली, मैं और मेरा को फाउंडर बैठे हुए थे, वी वर वर्किंग अराउंड कि नाम क्या रखें, ठीक है। एंड देन वी थॉट कि हम ही दो हैं,
तो अपने एट्रीब्यूट्स के अराउंड सोचते हैं क्या क्या नाम हो सकता है, एंड देन वी केम अराउंड अ नेम विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक पीपल. This is 2017. And we looked at many words and we came across a word named as awesome sauce, जिसका currently global meaning is a group of people who do fantastic work. And by luck 2019 में ये Urban Dictionary ने ऐड किया, तो हमारे पास ये नाम तब से था. So this is the name. कुछ फैंसी कहानी नहीं है, it is a very basic कहानी जो दो co-founders ने रख दिया. ठीक है, and since then we have been building around it. Yes, that's what has been happening. Today I'll not be talking about Awesome Sauce precisely, but one of the divisions of Awesome Sauce that is involved in influencer marketing. I hope we are aware of influencer marketing. Are we? Yes. Ask it. ठीक है. Yeah. So I'll quickly move to the content page where I'll tell you कि मैं बताने क्या क्या वाला हूँ ताकि we are mentally prepared to grasp what I'll say. So we'll be covering like who are influencers, what are their types, why do we need them actually if we need them, then how do we identify the best ones for our businesses, and finally जो company आपको करने में मदद करेगी Oregano Social वो क्या है. So who are influencers? So I have written a bit over here. Let me read that out first. Influencers are regular people in a way who are a bit like you, a bit like me. But then उनके पास एक spark होता है, एक following होती है, एक understanding होती है, which takes them above a level. So we have our own definition of influencers, and I would like to repeat that over here. मैं बस read करूँगा because this is what we have formulated after many days of working. So this is a set of people both in digital and physical world who hold the mass attention, affect buying patterns, assist in decision making, influence lifestyle choices, and in a broader sense consciously or subconsciously manipulate mindsets. Very important people in current creator economy and marketing scenarios to do actual organic marketing. Now read it again but slowly. They hold mass attention, they affect buying pattern. ये सारे मंत्राज इसलिए हैं कि हमें उनको लेना क्यों चाहिए. They assist in decision making and they influence lifestyle choices. So these are actual attributes of influencers or bloggers or in the creator economy, current social media creators. So these are the basic attributes that we have to follow. Then comes different types of followers by following. So सबसे पहला क्राइटेरिया क्या निकाला गया सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करने का, वाज नंबर ऑफ फॉलोइंग, कि उनका व्यूअरशिप का काउंट कितना है. सबसे पहला था क्योंकि और कुछ मेजर ही नहीं हो पा रहा था, एनालिटिक्स इतने प्रिसाइज निकल नहीं रहते. सो नंबर 1 वाज फॉलोअर कितने हैं भाई के, 1K to 5K नैनो इन्फ्लुएंसर्स, 5K to 20K माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, 20K to 100K followers, mid-tier influencers, then there are mega influencers and celebrities. Now I'll tell you one thing, if you look at this graphical representation, 44% of the vector is with micro influencers in the market. Now these are the influencers which have been in the industry since like 2 to 3 years or 4 years. They have certain kind of following, not in the sense of general people, but in the sense of brands also, in the sense of other influencers also. नैनो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं मार्केट में, वो सोचते हैं भाई किसको देख के सीखें, इमीडिएटली उनके ऊपर होते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स. सो दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स विद द मोस्ट कमांडिंग अथॉरिटी इन द मार्केट राइट नाउ, एंड दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स ऑन विच वी स्पेशलाइज एज ऑरिगैनो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेलिंग द ब्रांड्स कि कौन कब किसको यूज करना चाहिए. Yes, now let's have a very good graphical तो नहीं है, number and text है majorly. Based on their industry type, a बहुत ही interesting metrics है. Now these metrics have been accumulated from paid sources. One of the paid sources Euromonitor. It is a research company from Australia. Lifestyle bloggers in 2020 had a growth pattern of 11.59 and in 2021 it grew to 13.80. 2022 में एक्सपेक्टेड है कि ये 15% ग्रोथ दिखाएगा. लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स,
Then there are beauty influencers, there are music, photography, family, humor, shows, modeling. Now there are different kind of industries जिसमें influencers function करते हैं. हो सकता है आप लोगों को ना पता हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट देन ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि किस ब्रांड को किस इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंसर अपनाना चाहिए. नाउ इन these are the dominating industries and these are the percentages कि किस तरीके से वो dominate कर रहे हैं इंडस्ट्री में. Once again, so why do we need influencers? Let's get stuff contextual and अभी अब वापस अपनी दुनिया में आते हैं और यूपी और लखनऊ की बातें करते हैं क्योंकि यहीं हैं हम लोग. Number 1, approximately 41 lakh people are there in Lucknow who have screens, who actually look at screens. So that is the approx count of people which we can target. There are 8,61,000 people who have smartphones. ये लखनऊ का डेटा है. Then we have approximately 87,945 people who have iPhones. 70% of these people have real capability to buy stuff. EMI पे नहीं लिया है. तो अपने पास 60,000 लोग ऐसे हैं who really have strong buying capacity in Lucknow. How do we follow them? Influencers. Lucknow has approximately 450 influencers. सोच के लग रहा है कि बहुत बड़ा नंबर है, बट आप आँख बंद करके अगर सोचें तो बहुत छोटा नंबर है लखनऊ के लिए. But these are the people who are commanding maximum viewership and these are the micro influencers जो मैंने पीछे दिखाया था 5,000 to 20,000 followership वाले. So what is stopping you? ये figure out हम लोग 1-to-1 meeting में कर लेंगे. Then let's talk about halo effect. So guys, what is halo effect? Anybody? ठीक है. So ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनूंगा. Halo effect in simple principle says, for example, there is one node and it starts having influence on other nodes so that it starts listening to him and performing as per him. That further is heard by other people and they start following the first person. So that chain reaction in fancy terms is called as halo effect. मैंने इसको बहुत deep में नहीं समझाया so that I don't confuse you guys. Now I'll do a छोटा सा representation यहाँ पे. For example, people understand demographies, right? ठीक है. So there are different kind of demographies in Lucknow also. मतलब सबकी अलग अलग buying capacity है, अलग age है, married है, single है, फलाना डिमाका है. For example, we take 4 demographies as case study and we take 3 influencers. अब मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि influencer 1 का certain demography पे command है, influencer 2 का certain demography पे command है, influencer 3 का certain demography पे command है. But apart from that, they also command adjoining demographies. So in a way, when you are planning a campaign and when you are hiring 3 to 4 influencers, so you automatically get overlapping demographies. तो जो कहा जाता है ना मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग में एक बंदे को एक चीज़ 7 बार या 8 बार दिखाओ तो उसके दिमाग में बैठ जाता है, रिकॉल आ जाता है. तो दैट ऑर्गेनिक रिकॉल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिस्टम. इट इज़ ऑलरेडी देयर. एंड एज गिरीश जी मैंशनड कि सर्चेबिलिटी वेबसाइट्स में है, सर्चेबिलिटी सोशल मीडिया में नहीं है. ठीक है. सो आई एम बिल्डिंग ऑन टू दैट. सो नाउ देयर इज one social media platform या one display platform that is being converted into a search engine model is YouTube. and अपने पास YouTube के influencers भी भरे पड़े हैं. ठीक है. एक फैक्ट दूंगा, अगर कोई भी confusion हो तो प्लीज़ लेट मी नो. अगर कोई भी ad रन होता है किसी भी टाइप का, आपको एक बार दिखता है और गायब हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन. ad का एट्रीब्यूशन वैल्यू इज़ 1 day, whereas influencer का एट्रीब्यूशन वैल्यू इज़ 21 days. अप्रॉक्सीमेटली 3 weeks. वाई? क्योंकि उसने जब कंटेंट क्रिएट किया वो भले वायरल हो ना हो, वो कहीं पे डेटाबेस पे पड़ा हुआ है, वो सर्चेबल है. और अगर बाई चांस आपने बजट को दिमाग में रख के यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर हायर कर लिया, यूट्यूब इज़ अ सर्च इंजन, योर प्रोडक्ट्स कैन बी सर्च्ड ऑन यूट्यूब. सो दैट्स वेयर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर यूट्यूब इज़ द नेक्स्ट बिग गेम दैट विल हैपन. एंड आई थिंक देवांशी विल बी कवरिंग हाउ रील्स and video content would be helping that. तो या मेरा वहाँ I guess forward हो जाएगा. So are we clear with this? छोटा सा. Yes. So how do we identify the best one for our business? There are certain factors that we keep in mind. I will not tell you the mantra because that varies from brand to brand, requirement to requirement, product to product.
but these are few factors. For example, we need to understand our industry, and then जो viewer है, जो consumer है, वो क्या देखना चाह रहा है. We also look at the engagement rate in percentages कि हमारा जो influencer है उसका engagement rate क्या है. आप लोग ने देखा होगा कि 2-2 लाख 4-4 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन लाइक 11 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं. Now there are certain metrics to calculate engagement rate, but ये अगर 10, 11, 12 लाइक्स आ रहे हैं ना, that is really really poor engagement rate. कुछ कोरिलेशन होना चाहिए आपकी फॉलोअरशिप में एंड आपका इंगेजमेंट जो आपको प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है उसमें. सो दिस इज वन ऑफ द मेट्रिक्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंसर्स. थर्ड थिंग विच वी कैन वेरी प्राउडली से नन ऑफ द एजेंसीज इन लखनऊ प्रोवाइड्स इज अर्नड मीडिया वैल्यू. अब लोग कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया कैंपेन कर दी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन कर दी, बट पैसा क्या आया, कन्वर्जन क्या हुआ. Now the biggest defaulter which is a downside in people's brain is कि पैसा ही असली चीज़ है. But in the digital world, your visibility is also value. Your recall that is generated is also value, and that can be calculated with a lot of algorithms, with a lot of metric systems. We can calculate कि अगर for example नेहा ने मुझे 15 बार देखा, so there are higher chances in future कि she would refer me or she would come to me. That is also value, and this is very intrinsic, and there are formulas to calculate that. So this is one of the things that because we have an inbuilt system, we can calculate. Then उनका followership, obviously that helps us define nano, micro, mid range, mega celebrity. Geography very important, जहाँ पे हम बेच ही नहीं पाएंगे वहाँ दिखा के क्या फ़ायदा. Then comes content type. अब आप क्या बना सकते हो वो एक चीज़ है, क्या ट्रेंड में चल रहा है वो अलग चीज़ है. एंड नाउ आई वुड से लेट्स फॉलो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, विच इज़ द वीडियो कंटेंट. फाइनली बिजनेस थोड़ा सा मिलना चाहिए मुझे भी, तो आई विल टॉक अबाउट ऑरिगैनो. सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो. दिस इज़ अ स्मॉल टीजर दैट वी हैव बिल्ट. ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं क्योंकि मैं बाकी बताने के लिए हूँ. देन व्हाट इज़ ऑरिगैनो सोशल. सो टेक्निकली ओवर हेयर यू फाइंड वन प्लेटफॉर्म, यू कैन गो इनटू multiple campaigns and you can have really skyrocketed ROMI if everything is planned or assisted by specialists. ROMI वैसे return on marketing investment होता है. Then this is the exact definition of what we do. At its core, Oregano Social is a platform that provides seamless collaboration opportunities for brands, agencies, and influencers. Now, when you come to us, you technically tell us कि भाई aim क्या है, करना क्या है, चाहिए क्या. Then we will tell you कि अच्छा ऐसा influencer हो सकता है, ऐसी geography हो सकती है, recall ऐसा रखना है तो social media platform ये हो सकता है. So we are actually a collaboration opportunity platform, and we have a lot of plans to do. We are building a software that will be launched soon enough. So मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ. So यहाँ पे we have few of the top influencers that we have, or maybe the next top influencers in Lucknow that will we have. And these are the clients, being very honest, these are the clients that Oregano has catered as of now. इनकी campaigns live हैं, multiple times run हो चुके हैं. We have Hare Krishna, we have Lala Jugal Kishore, we have Reds, Who on India, Interlude, Fan Cafe, and Ladies First. Now, these are few of the case studies. So we did Valentine's Day campaign for Lala Jugal Kishore Jewelers. मैं बस दिखा रहा हूँ कि हम लोग जब काम करते हैं तो metric system generate कैसे होता है. So we understand the target audience. Now there is one set जो मैं पूछूंगा कि भाई आप बताओ किसको दिखाना चाह रहे हो. Then there is one set that we tell कि actually इसको दिखाना चाहिए, तभी ROI आएगा या नहीं आएगा. So there are target audiences, then there are platform setting, then we recommend कि इतना budget है तो इतने influencers लो. Yes, we were able to optimize their budget, so we got a budget of 1,30,000 and we were able to close the campaign in 42,000 only. So यहाँ पे एक transparency और है. Client pay करता है influencers को. We do not take the money. Okay. Yes, it won't flow through us. We will set the deal. Everything is done, and also we don't take anything from influencers.
We have a service cost that is paid by the client. Influencers are free to operate and you will pay the money so that there is full transparency in the system. वरना client को आता है ना कट रख लिया होगा, वो system है ही नहीं, ठीक है? Everything is seamless. Now, why will the client stay with us? Why will the influencer stay with us? Because of the seamless experience. We take all the headaches कि content ऐसा है, spelling गलत है, frame के बाहर जा रहा है. आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर के पास जाओगे, शायद वो 3 ही बार आपका रीटेक करे, शायद वो 2 ही बार आपका रीटेक करे. हमारे साथ चांसेस अलग होते हैं. 5 बार, 6 बार, 7 बार हम लोग रीटेक करा लेते हैं बिकॉज वी हैव अ बिजनेस मॉडल दैट इज वर्किंग इन दैट डोमेन. So this is one case study. Similarly, I have more case studies which I would share with you guys, so you guys can have a look at it कि हमने कितने में क्या अचीव किया. 8,000 रुपये में हमने कितना रीच दिया, 42,000 रुपये में हमने कितना रीच दिया. अगर एड रन करते तो एड बजट ही अराउंड 70 to 75,000 रुपीज़ आ रहा था, सर्विस कॉस्ट अलग. सो दिस वॉज विदाउट रनिंग एनी काइंड ऑफ एड्स, इट वॉज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंसर ड्रिवन एंड वो भी बार्टर. प्रोडक्ट भी वापस आ रहा है आपके पास. So we have data for Rids, we have data for FanCave, and we have data for Interlude. Yeah, I will share this data with you guys so you can analyze, and in case we have any kind of questions, then you can come back to me. For the data that you're sharing, say for example, our able to show, or for example, how many videos does that include? Sorry? That is how many, videos. So when we go for a campaign, so for example, ये Valentine's Day campaign है, ठीक है? So there will be only one reel, ठीक है? Video content 1 होगा, but then we have 2 static announcements. So this is the data for one particular collab or whatever with the influencer. No. This is with the 7. So 7 influencers have created one video. नहीं. 7 influencers have. I couldn't read from here the number of influencers. हाँ. So यहाँ पे for example it is 7. उसका ये data है, है ना? So this is what I have mentioned. Okay. So for example, we were able to achieve a campaign for Rids which was completely free of cost. Technically नहीं था क्योंकि उनको कुछ ना कुछ goodies देना पड़ा था, but we were able to get influencers जो 10,000, 8,000 से नीचे आते नहीं हैं. We were able to convince them. Now this is an internal thing, business to business, about how we work on this model. So these are few case studies, and I think I am done. If we have any kind of questions. हाँ जी. So I'm very new to this influence marketing. So I have just asked first question ROMI. So what are the parameters for ROMI which you give? Attributes. As in? ROMI, return on marketing investment. Okay. So what happens is when, ठीक है, I think. So what happens is when client comes to us ना, he tells us कि भाई ROI नहीं निकला, तो हम लोग उससे समझना चाहते हैं कि तुम्हारा ROI का मतलब क्या है, कि is it overall investment in the market that you have done, होर्डिंग भी लगा दी उसका भी जिम्मा मैं लूँ, तो शायद वैसा नहीं होता है. देन ऑपरेशनल कॉस्ट में आपने पैम्फलेट बंटवा दिया उसका भी जिम्मा मैं लूँ, वैसा नहीं होता है. We simply say कि the specific kind of marketing that we are doing with you, we will be responsible for that only. So we talk in the sense of ROMI, return on marketing investments, rather than talking on return on investments. Can you just go back one slide? So this is on your right. So this is on your right is your ROMI. Yes. 55 to 80. मतलब ROMI is generally in the terms of rupees. मतलब this is not in the terms of monetary value. This is not in ROMI is in terms of monetary value. This is just the steps which you gave on the campaign. That is what he shares with us client कि उसने कितने टेस्ट यहाँ पे आके relative with that. So sorry. What you are asking. मतलब ROMI is technically पैसा. This is no money. This is all stats. इसमें से पैसा कैसे दिखेगा? It's not mentioned here. That's what I'm saying कि उनको इस benefit मिला होगा. He has not mentioned it. हाँ. ऐसे ही पूछ लीजिए. सवाल बेसिकली ये है, जो इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाते हैं, they shout out या फिर कोई स्क्रिप्ट होती है which gives कि जो ऑडियंस है उसको
I'll show you. स्क्रिप्ट होती है या फिर सिर्फ शाउट आउट होता है कि माय बॉक्स खाई के बहुत अच्छा है, या फिर एक स्क्रिप्ट की तरह होता है कि सो दैट एक्चुअल में उसके पीछे क्या रीजन है माय बॉक्स खाने के पीछे, I'll show you. रीजन है वो पता चले। प्रियांश इंटरलूड वाला लाइव है, इंटरलूड लाइव है. I'll show you one. I'll show you one reference. वो आंसर कर देगा आपके क्वेश्चन को. ये जो आपने कैंपेन रन किया इन्फ्लुएंसर का, ये यूट्यूब पे था? हाँ जी. यूट्यूब पे ही था? नहीं, सोशल पे था. ये देखिएगा गिरीश जी. So I am showing you. So guys, so I am showcasing one of the reels that was done for interlude. Now it is a specifically his question I'm answering. ठीक है. So this is a reel. It is not a shout out. It is a campaign for interlude. It is a students accommodation. One second. So for example in this campaign when we went to the client came to us कि भाई अपन को influencer चाहिए and intent of the video is this. We have to showcase the interiors, we have to showcase the facilities. Then we tell them कि अच्छा this all is doable and we go back to the influencer. First of all we select the influencer, then we discuss the brief. Will you be able to creatively represent the idea or not? If yes, then we ask them to share a script. It is all script based, random नहीं है. They स्क्रिप्ट होता है सिर्फ शाउट, जैसे स्क्रिप्ट है बेसिकली, या फिर इन्फ्लुएंसर सिर्फ शाउट आउट करते हैं। शाउट आउट करवा सकते हैं अगर पैसा नहीं देना है ओके, तो वो शाउट आउट ही करते हैं फिर. हाँ जी. So after you run this campaign, you guys also monitor or see how this campaign has affected the business and in turn has it grown to some certain percentage or no, or do you keep a track of that? See, we cannot actually, I'll be very honest, as an agency we cannot track that. ठीक है, we cannot track your internal sales. No, but like do you even touch the customer base Yes, we do. as that in campaign? See, now when for example interlude and now over here we are responsible for their integrated marketing, full cycle, okay, from ads to content to influencer and everything. When we are running advertisement and the type of lead that we generate, and when we have run this and the type of lead that we generate has changed, has evolved. The questions that people ask has changed because they get some clarity by the videos. So this is I would say a tick for us कि हमारा campaign सही गया. And then client हमारे साथ रुका हुआ है तो I think कुछ तो सही हो रहा होगा. For a particular period of time. Yes. In fact, पहले क्या होता था ना influencer marketing के case में, so earlier in the case of influencer marketing, we used to run these campaigns like 2 times in 6 months, 1 time in 6 months, 3 महीने पे 6 महीने पे ऐसे रन होता था. But now because video content is so loud in the market and YouTube is going to be the next search engine and the Reels is there, TikTok is there and whatnot, so we need to be consistent with influencer marketing as well. I would say what I've seen in a lot of conferences, international conferences that we attend and see कि 2026-27 के आसपास this will also plateau. Okay, video content, Reels will also plateau, something next will come. But by then, Reels, influencer marketing is what we have to grow organically. Till the time Instagram, Reels से भी ad run करना शुरू कर दे, पैसा कमाना शुरू कर दे. But how you tablet marketing? Sorry? So there is certain amount spent on हाँ. campaign. So what's the sales like for ठीक है. that campaign? Yeah. So return on marketing investment तो कभी आएगा? So that is why we have a thing that we offer called EMV, earned media value.
ठीक है. So all the things that happen in return of marketing attempts is not just money, it is also retention, it is also value. So there are certain formulas using which you can tell कि आपके इस कीवर्ड की इतनी रिटेंशन है मार्केट में, कि उसकी सर्चेबिलिटी पे ऊपर और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर which are there in the algorithm systems. So that is what we tell client. एक सेकेंड, प्रियांश किसी का EMV याद है? Approx? So that was a calculated data कि हमने अगर इतना एफर्ट लगाया है, अब इसमें कितना बजट लगा था प्लेटफॉर्म को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बजट प्लेटफॉर्म के पास गया ही नहीं. इट वेंट टू द इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटेड अ कंटेंट, बेस्ड ऑन द कंटेंट, बेस्ड ऑन इट्स रीच, बेस्ड ऑन द वायरलिटी, वी कैलकुलेट कि कितना बजट, कितना ROI आ सकता है इफ़ यू आर पोजिशनड करेक्टली. ठीक है. इफ़ यू आर नॉट देयर ऑनलाइन तो कोई खरीदेगा कैसे? इफ़ योर शॉप्स आर नॉट देयर फिजिकली, कोई जाएगा कैसे?